Hello friends, welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies Standard 10 Chapter 2 Cultural Heritage of India, Traditional Handicrafts and Fine Arts Part 2. In the last session we have studied about the traditional handicrafts in India. And in this session we are going to study about the fine arts of India. Singing, playing, dancing, performing roles of different characters is a unique feature of Indian culture. Entertainment with moral education. Entertainment with moral education means entertainment तो है ही प्लस साथ साथ में हम आपको moral values भी इससे हम सिखाते हैं. Are being imparted, are being given up through the drama based on the scriptures like Ramayana and Mahabharata. Now first we'll study about the music. Indian music is unique in the world from the point of view of tune, rhythm and harmony. And that is why it is different from the other countries. Samveda out of the 4 Vedas is considered to be associated with music. जो 4 वेदास हैं हमारे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा, जिसमें से समवेदा है, इट इज वन ऑफ द 4 दैट इज बीन एसोसिएटेड विद द म्यूजिक. ऋचास ऑफ द समवेदा आर संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक. ऋचास मतलब श्लोक्स और मंत्र जो समवेदा में है उसे हम ट्यून और रिदम के साथ गाते हैं. म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. म्यूजिक जो हम गाते हैं एंड प्लेइंग मीन्स प्लेइंग विद इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ रुद्रवीणा, सितार, तानपुरा, सारंगी. These were the instruments that were being played in the musical history. Here you will see Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni are the 7 vowels of music as we all know it. Indian music can be divided into 2 parts. First is the classical music and the folk music. Classical music जो हम लोग ये classically हम उसे गाते हैं. Folk music is related to the communities, to our religion. We have 5 main ragas in the classical music that are Shri, Deepak, Hindol, Megh and Bhairavi. These are the 5 ragas. It is believed that all these ragas naturally came from the Panchmukh of Lord Shiva. वो शिव भगवान के पंचमुख से initially आए थे. Many texts are written on the music out of which we will study about the 3. ऐसे बहुत सारे म्यूजिक के टेक्स्ट हैं पर उनमें से हम सिर्फ आज इधर 3 ही पढ़ेंगे. दैट आर द संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजात. संगीत मार्कंड, a music scholar Narad who had written Sangeet Markand in about 900 BC. ये many times as a one line answer it has been asked who has written the Sangeet Markand. That is Narad who has written the Sangeet Markand. It describes 19 venas and 101 rhythms which are even useful today. आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं या आज भी वो उतना ही यूजफुल है. नेक्स्ट इज अबाउट द संगीत रत्नाकर. द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंग देव. Who is the writer of Sangeet Ratnakar? That is Pandit Sarang Dev. He lived in Daulatabad, so he is familiar with both South and North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande considered Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. It can be again asked as a one-line answer. Which book is considered as an authentic book of music? That is Sangeet Ratnakar. Sangeet Ratnakar is believed to be the unique in understanding all the aspects of music. Music के बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए आपको इसमें से मिल जाएगी. Next is about the Sangeet Parijat. Sangeet Parijat is a very important book on music. Pandit Ahobale had
written this text on in 1665 on northern Himalayan Hindustani music. Pandit Ahobole, who has written this Sangeet Parijat. He had noted the important character features of all the ragas, saying that ragas have their own individual identity. जो ragas हैं उनकी खुद की एक अपनी अलग identity है. He has described 29 types of tunes. 29 types of tunes उन्होंने describe की है इसमें. During the time of Alauddin Khalji, talented Amir Khusrau, he was a poet. He was very famous at that time. His contribution in the field of music and poetry was known as Tote-e-Hind, that is the parrot of Hind. Hind is the another name for Hindustan or India. Bhakti movement in India started in 15th and 16th century. 15th-16th century में Bhakti movement start हुआ था. Many Bhakti Sangeet of Chaitanya Mahaprabhu, Kabir, Tulsidas, Mirabai and Narsin Mehta were very famous. These were the Bhakti singers or related to the Bhakti movement of India. The disciple of Swami Haridas, Baiju Bhavra, Tansen, the duet girl Tanarini are considered as the jewels of music. उन्हें jewels बोला जाता है. Jewels यानी बहुत ही कीमती लोग हैं ये म्यूजिक को रिलेटेड. Now we'll start with the art of dance. यहाँ तक हमने पढ़ा about the music. Now this work will go with the dance form. The word nritya has been derived from the original Sanskrit word nrit. नृत्य से यह वर्ड आया नृत्य. नृत्य मतलब डांस. Dance is one of the medium of realizing the beauty with tal and lay. For the realization of aesthetic मतलब beauty. किसी भी एक चीज़ को जब हम देखते हैं उसमें ब्यूटी, तो वो डांस एक ऐसा फॉर्म है जो हमें उस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट करता है. Shiva, the originator of dance, is the lord of dance. Again, this is again asked as one line answer. Who was the originator of dance? That is the Lord Shiva. Shiva is therefore also said to be the Nataraja. Nataraja इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि he was the one who started the dance or he was the originator of the dance. He was the first to bring down music from heaven to the earth to teach the art of dance to the people. India has a wide variety of traditional dances. ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस की बहुत वैरायटी है हमारे इंडिया में. दे आर एज भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट डांस फॉर्म्स. फर्स्ट इज अबाउट द भरतनाट्यम. द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव्ड टू बी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इन तंजौर. देयर आर 2 बुक्स, नृत्य शास्त्र बाय भरत मुनि and Abhinav Darpan by Nandikeshwar. These are the 2 books on the dance Bharatnatyam, which are the original sources of Bharatnatyam. जो originally जो भरतनाट्यम के जो senses हैं जो हमें इनमें से पता चलता है. Gopi Krishna and Mrinali Sarabhai, the actresses like Vaijayantimala, Hema Malini, etc. are considered to be the preservers of this dance heritage, of this heritage. ये जो हीरोइंस हैं वैजयंतीमाला एंड हेमा मालिनी, वो उन्होंने इस डांस फॉर्म को अभी भी रखा है. दे आर प्रिजर्विंग, दे आर द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज. नेक्स्ट डांस इज अबाउट द कुचिपुड़ी. दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन द 15th century and it is based on the description of women's beauty. It different poses and gesture. Poses जो अलग अलग pose हम देते हैं, and gestures means the movements of the hands are performed by the male and female dancers are the main foundation or the main point of this dance. Kuchipudi is famous in Andhra Pradesh. Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu, etc. are the well-known dancers. This is also many a times asked, like who are the famous dancers of Kuchipudi? So these are Guru
Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu are the well-known dancers who have preserved this ancient tradition. Next we are going to study is about the Kathakali. This dance is very famous in Kerala. The word Kathakali has been derived from the drama based on the ancient epics of Ramayana and Mahabharata. Now Kathakali is a dance form जो हमारे एंशियंट एपिक्स यानी ग्रंथ हैं, जो रामायण और महाभारत है, उनके इंसिडेंट्स पर ये डांस फॉर्म किया जाता है. द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट वेयर अ ब्यूटिफुल प्लेटेड अटायर्स. अटायर्स मीन्स ड्रेस. जो उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ही ब्यूटिफुल होते हैं एंड दे आर वेरी नाइसली प्लीटेड अप. वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर्स. उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हम उनके कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं. द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक. उनके जो क्राउन्स होते हैं, जो मुकुट वो पहनते हैं, वो भी बहुत आर्टिस्टिक होते हैं. द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विद द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द पोजेस ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर. वो अपने कैरेक्टर को पोज ऑन करने के लिए उनके फेशियल एक्सप्रेशन से और हाथों की मूवमेंट से हमें पता चलता है. Poet of Kerala, Sri Valod, Kalamandalam, Krishna Prasad and Sri Varman etc. have earned great name in the nation and the whole world wide. पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम किया है. Next we are going to study is about the Kathak dance. The line कथन करे सो कथक कहावे. कथन करे यानी जो बता पा रहा है वही कथक कर सकता है. Is related to the Kathak dance. Kathak dance narrates the life events and the incidents of Lord Krishna. जो कथक डांस है वो हमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताता है, या जो उनके इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी लाइफ में वो दर्शाते हुए ये डांस होते हैं. It is observed that it is believed with the Shungar Bhakti of वैष्णव कम्युनिटी. ये वैष्णव कम्युनिटी को बिलोंग करता है. In this style of dance, dancer turns around on one leg and shows the references of the dance. अलग अलग डांस फॉर्म्स वो अलग अलग रेफरेंस दिखा रहा है on one feet और one leg. Women wear narrow trousers and frilled frocks attire. Attire means clothes. जो उनके जो हर एक डांस के एक स्पेसिफाइड क्लोथ्स होते हैं. Here the women's का दिया है, they wear a narrow trouser and a frilled frock over it. This style of dance has been kept alive by Pandit Sri Birju Maharaj and Sitara Devi, Kamunidini and Lakaini. ये सारे जो डांसर्स हैं इन्होंने इस डांस फॉर्म को, दैट इज द कथक डांस को, अभी तक आगे रखा है. और they are the famous dancers as a Kathak dancers. Next dance is about the Manipuri dance. Manipuri dance मणिपुर से आया है. So Manipuri dance is in Manipur. These dances are specially done on the special occasions and festivals. This dance style is chiefly based on the Ras Leelas of Bal Krishna. बाल लीला ऑफ कृष्णा, जो कृष्ण भगवान बचपन में जो लीलाएं करते थे, ये उस पर बेस्ड है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द लस्या एंड द तांडव. प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट्स इज नोन एज कुम्मिन. यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो नीचे जो उन्होंने घाघरा पहना हुआ है ग्रीन कलर का, दैट इज नोन एज द क्यूमिन. एंड द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज एंड अ बेल्ट आर पुट अराउंड द वेस्ट. ऊपर से सिल्क ब्लाउज एंड अ बेल्ट इज बीन वोन. गुरु अबोन सिंह, अतंबो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मला मेहता etc. have gained worldwide famous as the Manipuri dancers. Next we are going to study is about the dramatic art. Dramatic art क्या होता है? जो हम ड्रामा के थ्रू अपने फीलिंग्स या अपने मैसेज पास ऑन करते हैं, that is known as the dramatic art. Entertainment is Sanskar entertainment is a unique feature of the Sanskar entertainment. एंटरटेनमेंट के साथ साथ वी आर ऑल्सो गिविंग यू संस्कार.
द वैल्यूज ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर के जो मेन संस्कार वैल्यूज हैं वो भी हम इसके थ्रू पास ऑन करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, anchor and the funny pair of clowns are also there to entertain the people. जो लोग वहाँ पर ये देखने आते हैं, एंकर तो होता ही है बोलने के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स जोकर्स जो इन लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं. नृत्य शास्त्र बाय भारत मुनि इज अ वेल नोन फील्ड ऑफ आर्ट. ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with the audio visual aids, this trio holds the capacity to entertain the people of all age group. ड्रामेटिक आर्ट, उसको लिखना, उसको परफॉर्म करना, along with ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो यानी जो सुनाई देता है, विजुअल जो हमें दिखता है, उस एड्स के साथ इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि हर उम्र के लोगों को ये एंटरटेन करता है. ड्रामेटिक इज एन आर्ट ऑफ एमलिगेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स. अमैग्लेशन जो हम पहले भी पढ़ते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स. Bharat Muni says that there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में इन्वॉल्व नहीं हुई है, चाहे वो बुक से हो, स्कल्पचर से हो, नॉलेज से हो, डीड्स यानी जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे हो, ये सब कुछ ड्रामेटिक आर्ट में आ जाता है. द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भारत मुनि वॉज Devasur Sangram. This is also many a times asked as a one-line answer. The first drama of Bharat Muni was Devasur Sangram. We have various well-known dramatic. संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट यानी जो लिखते हैं ड्रामा, उनका जिक्र किया गया है. बाज इज द पोएट ऑफ द पोएट्स अमॉन्ग देम. जो पोएट्स थे उस टाइम में, उनमें से बाज तो था वो सबसे ज़्यादा या बहुत ही उम्दा, हम बोलते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन पोएट था. ही बेनिक्विट देम. बेनिक्विट मतलब जो मरने के बाद भी हम लोगों को देकर जाते हैं. ही गेव अस द ड्रामास लाइक द कर्णाभार, उर्भंगा और द्वित्वकर्म बेस्ड ऑन महाभारत. ये महाभारत से ही कुछ हिस्से लिए गए हैं जिन पर ये प्लेस बनाए गए हैं. वेरस कालिदास वॉज द फॉरमोस्ट पोएट गिफ्टेड अस द प्लेस like अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोश्चयम एंड मालविकानी मित्रम. ये जो प्लेज हैं ये कालिदास ने दिए थे हमें. अपार्ट फ्रॉम देम मेनी ड्रामेटिक केम एंड एनरिच द ड्रामेटिक संस्कृत लिटरेचर. ये जो हमने पढ़े उनके सिवाय और भी ऐसे ड्रामेटिक्स थे जिनके बारे में हमारे लिटरेचर में ज्ञान दिया है. The name of the Jayashankar Sundari is the foremost in the dramatic art of Gujarati. ये जो गुजराती प्लेज होते हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है जयशंकर सुंदरी. उनके अलावा और कौन थे? अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला. दे आर ऑल्सो अ रिमार्केबल प्ले राइट्स. ये भी बहुत बेहतरीन प्लेस लिखते आए हैं. दे हैव ऑल्सो ग्रेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रीजनल एंड द ड्रामेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द फील्ड. इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द भवाई. स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज अ इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा, जो इमोशन से जुड़े हुए होते हैं. इट इज अ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड अबाउट 700 years ago by the ascetic Thakur. ये नाम है उनका जिन्होंने ये ड्रामेटिक स्टार्ट किया था. This art has been providing the public education along with entertainment and at to reasonable rates. Economical rate मतलब reasonable rate. इन प्लेस का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, जो लोग जाते हैं वो इजीली उनको देख सकते हैं. पब्लिक एजुकेशन, इनके जो टॉपिक हैं वो पब्लिक को कैसे एजुकेट किए जाए उन पर बनाए जाते हैं. It was chiefly performed without the curtains. इनमें curtains नहीं होते हैं. With the light humor and with the music playing on the trumpet. Humor मस्ती मजाक और पीछे वो trumpet भी बजता रहता है. Characters distinguished in the form of रामदेव,
जंदा, झूलन, काजोड़ा एक्सेट्रा द मेन फीचर्स ऑफ भवाई। ये कैरेक्टर्स हैं जो इस भवाई में प्ले ऑन करते हैं। द थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल वाइसेस। सोशल वाइसेस यानी जो सोशल चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं उसको लेकर ये ज़्यादातर होता है। इज द मेन कैरेक्टर्स आर द रंगला एंड रंगली are used to promote the programs like girls education, save the girl child। रंगला रंगली जो कैरेक्टर्स हैं ये जो ज़्यादातर जो प्लेस बनाते हैं उनका मेन जो प्रमोशन होता है वो है अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को बचाओ। Those who perform this भवाई play the trumpet and pray to goddess by reciting the hymns। वो लोग hymns यानी जो मैंने पहले भी बताया था रीजनल सॉन्ग्स, डिवोटी सॉन्ग्स, भजन जैसे, they sing that to please the god। they are performing भवाई और साथ साथ में ट्रम्पेट भी बजता है, they pray to goddess। next is about the folk dances of गुजरात। ये जो हमें अब तक पढ़ा वो सारे थे क्लासिकल डांसेस ऑफ गुजरात। Now we are going to study about the folk dances of Gujarat। There are varied forms of belonging to different communities of Gujarat। The dance form according to the traditions and customs, उनको हम बोलते हैं folk dances। The folk dances like Garba, Ras and many other folk dances। Such dances can be seen at the time of festival, marriages and fair because they are already related to the traditions and the customs। The first among this is the tribal dance। Tribal dance of Gujarat is seen in the times of festival, marriages, fairs and to please the god and goddesses। Most of the dances are performed by forming a circle। circle बनाकर ज़्यादातर ये जो dances हैं किए जाते हैं with the musical instruments like drum, traditional manjira, थाली, ढोलक and the songs in their regional languages। जो उनकी region की जो basic language है, उनकी main language है, उस language में उनके songs होते हैं। In the dance form known as the Chhado, characters imitate different birds, creatures like peacocks, squirrel and sparrows। उसमें वो लोग birds के songs को या birds के voice को imitate करते हैं। Next is about that names are the Malino Chalo and Thakariyo Chalo are seen in Dang। They are specially done in the Dang, जो हम बोलते हैं ना डांग एरियाज में ये डांस होते हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ द ट्राइबल डांस ओवर हियर। द टिप्पणी डांस ऑफ द लेबरर्स इज परफॉर्म बाय द भील एंड द कोली कम्युनिटीज। टिप्पणी डांस हमने कई बार जो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम स्कूल्स में भी अरेंज करते हैं वहाँ पर भी ये टिप्पणी डांस हम लोग परफॉर्म करते हैं। दे आर स्पेशली डन बाय द भील्स and the Kholi communities। Dancers perform dance in the group on the set of thick sticks। वो लकड़ियों के sticks के ग्रुप पर वो लोग डांस करते हैं। Next is about the Garba। Garba, as we all know, it is the most famous dance of Gujarat। The word Garba derived from the word Garbdeep, earthen lamp placed in a holden earthen pot। मटके में हम लोग दिया जलाकर और वो हम डांस करते हैं। स्पेशली नवरात्रि हमको ये सब देखने को मिलता है। फेस्टिवल्स ऑफ इट इज द गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल्स। नवरात्रि में हम ये देखते हैं लोग जो है वो माता को रिझाने के लिए वो गरबा ग्रह सर पर रख के और वो डांस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात इट इज बीन सेलिब्रेटेड। Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray आद्य शक्ति मदर जगदम्बा। जगदम्बा माता के लिए हम लोग ये भजन ये गरबा गाते भी हैं, गरबा डांस करते भी हैं। एंड वी हैव दिस फेस्टिवल एज नवरात्रि। 9 दिन के ये फेस्टिवल है जो हम गुजरात में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इट इज जनरली परफॉर्म्ड इन ओपन ग्राउंड्स एनसर्कलिंग टू द मांडवी केप्ट इन द सेंटर। हमेशा आपने देखा होगा बीच में या तो माता की मूर्ति रखी जाती है या जो वो गरबा जो हमने यहाँ पर पढ़ा दैट इज बीन मांडवी, उसको हम मांडवी बोलते हैं, जो हम सेंटर में रखते हैं जिससे हम बोलते हैं माता का वास आता है उसमें, वो हम इसको सेंटर में रखे और उसके आसपास सर्कल बना के गरबा खेलते हैं विद द स्ट्रोक्स ऑफ हैंड एंड द बीट्स ऑफ ड्रम्स। गुजराती पोइट्री
known as the Garba and Garbi are chiefly associated with the Krishna Bhakti. अगेन अ गुजराती पोइट्री जो पोएम्स लिखी जाती है वो ज़्यादातर उसको गरबा एंड गरबी बोला जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कृष्ण भक्ति. कृष्ण भक्ति के में ये लीन होता है. गुजराती पोएट्स दयाराम wrote the poems in Gujarati which matched a lady singing the colorful and emotional garba of Lord Krishna's love. ये जो पोएट्स हैं वो ऐसे इमोशनल उनके जो सॉन्ग्स होते हैं जो कृष्ण भगवान के प्यार में वो लोग ये गाते हैं. दे आर बीन लव्ड विद कृष्ण गॉड. उनके लिए वो ये गरबा का ये सॉन्ग हम गाते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द रास. रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म्ड इन सर्कल अलोंग विद सिंगिंग. गाते भी हैं और डांस भी करते हैं. देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू द डिवोटी मतलब भक्त नरसिंह मेहता. रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग द नवरात्रिज. नवरात्रिज में हम लोग रास भी खेलते हैं एंड इट इज मोस्टली रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. एंड द जन्माष्टमी फेस्टिवल पर भी कई जगहों पर ये रास लीला होती है. डांडिया रास इज वन ऑफ दीज टाइप्स but some of the people from the ras by playing the earthen pots on the head. रास लीला हम लोग डांडियास के साथ भी खेलते हैं पर कई लोग हैं जो वो earthen pots वो सर पर रखकर भी खेलते हैं. Due to the increasing influence of the Vaishnava sect, ras has become most popular. Now it is becoming more and more popular. Women wear traditional dresses like embroidered चनिया चोली. जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है गर्ल्स का होता है चनिया चोली, whereas the boys wear the खेड़िया and dhoti while they perform the ras. Now the other dances of Gujarat, they are the Govgutan dance. It is performed on the drum beats and the tal and lay of music, tying the ropes with the mandap or the pillar or tree, holding the other hand with the hand. इस डांस फॉर्म में क्या होता है, एक बीच में बड़ा सा पिलर लगाया जाता है, एक रोप का हिस्सा ऊपर बांधा जाता है और दूसरा रोप का हिस्सा जो डांसर्स है वो एक हाथ से पकड़ के रखते हैं. दे परफॉर्म दिस डांस इन द ग्रुप्स होल्डिंग द रोप्स एंड इस तरह वो घूमते हैं कि उस रोप्स में अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं. दे मेक द क्रिपर्स लाइक फॉर्मेशन गोइंग वन साइड एंड द अदर. दिस इज रिपीटेड टर्न फॉर्मिंग द सर्कल और वो सर्कल में ही बनाया जाता है. अगेन वो एक बार बन जाता है फिर उसी चीज को खोलते हैं उसी डायरेक्शन को उल्टा जाके. बट इट इज डन सो स्मूथली कि हमें पता भी नहीं चलता है कौन कैसे आया. बट द रोप जैसे बनते हैं वो दिखते हैं एंड वो खुलते हैं वो दिखते हैं. दैट इज वाई दे मेक द ओपन ऑफ गुठन. दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड द गोल गुफ्टन डांस. इसलिए उसका डांस का नाम ही है गोफ गुठन डांस. उसको गूंथते हैं और फिर खोलते हैं. The next is about the Dhamal dance of Siddhis, presently residing in Jambur village in the center of the Gir. Originally they belong to the Africa and they perform this dance. They perform dance by the rhythmically striking dandiyon se rhythmically striking of the mashira, that is the coconut shells. कोकोनट का जो ऊपर वाला शेल आता है उसको बजाकर वो डांस करते हैं. Wearing the peacock feathers and holding small drums in the hands forming the circle. वो peacock के पर पीछे वो बांध के और खेलते हैं. They dance with the high and low pitch information of ho ho. बीच में उन लोग का वो आवाज भी हमें सुनाई देता है, हो हो साउंड बजता है. ड्रम्स के साथ वो उसको मैच ऑन करके वो डांस करते हैं. The dance with high and low pitch emotion of ho ho sound which echoes. वो फॉरेस्ट में करता है तो उसका echo होता है, गूंजता है वो आवाज. And they dance in a group imitating the voice of animals and birds. Next is about the Mayaro dance, Padhar dance and the Kali and Mer dance. This type of dance is seen near the steppe of Banaskantha region. Toran is woven with the tall grass of reed jamadli. This dance is performed on the drum beats and sword tricks. तलवार की ट्रिक्स उस पे की जाती है. This type of dance is called the Mayaro dance, जो ड्रम बीट्स पे तलवार के ट्रिक्स करते हैं.
In the Surendranagar region of people of Padhar community dance with the ताल and लय of the डांडिया and the मंजीरा. ताल और मंजीरा दोनों मिलके और वो डांस उस पर करते हैं. While dancing they create or generate the scenes like the sea waves or like the ship moving on the sea. वो ऐसे सब क्रिएट करते हैं जैसे एक दरिया में शिप चल रहा है, वेव्स आ रही हैं. Kohils of the Saurashtra perform the Kohil dance, holding the madrausi or the head and the headgear decorated with embroidery and mirrors tied with green colored embroidered belt. कोहिल जो डांस है वो जो मद्रासो उनके सर पे वो एक बांधते हैं पगड़ी जैसा, और वो इतना अच्छी तरह डेकोरेटेड होता है, एम्ब्रॉयडरी की हुई, तो उस पर मिरर्स लगे हुए होते हैं. एंड इट इज़ मेनली टाइड विद अ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी बेल्ट. उस पर फिर ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बेल्ट भी होता है. दे वेयर द बेट ऑन द वेस्ट टू परफॉर्म द डांस. वो ये पहन के और वो डांस करते हैं. सिमिलरली द मेर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भावड़ ट्राइब आर ऑल्सो वेल नोन. ये अलग अलग ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स यानी प्रजातियां हैं जो ये अलग अलग अपने फोक डांस करते हैं. As we have discussed in the previous chapter, here we also find that the Indian culture is universally estimating all. Universally इसमें सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं. Arrival of various tribes since ancient times. Many changes occurred like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dancing and various other fine arts. जो ये दूसरे लोग हमारे यहाँ आए थे, दूसरी ट्राइब्स जो बाहर से आई थी, उनके साथ जो हमने जो मिलकर एमलेगेशन करके जो हमारे कल्चर को हमने मिक्सअप किया था, बहुत सारे चेंजेस हमें दिखे थे, बहुत सारी ग्रोथ भी हुई, हमारे आगे भी बढ़े, उसको लेकर डेवलपमेंट भी हुआ. किस में? हैंडीक्राफ्ट, होम आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, डांसिंग एंड वेरियस अदर फाइन आर्ट्स. This shows the rich and the varied heritage in India and leaves the permanent impression of India on the horizon of the world. ये वेरिड हेरिटेज हमारा इंडिया का एक परमानेंट इम्प्रेशन बन चुका है जो हम आज भी पूरी दुनिया में देखते हैं. सो हियर वी एंड अप आवर चैप्टर. यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है विद द हैंडीक्राफ्ट्स एंड द फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया. थैंक यू.